Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, Assalamu alaikum. Today our topic is about civil services in USSR, Union of Soviet Socialist Republic. Before it we have discussed civil services in United States of America and France. Further we will discuss about civil services in Pakistan and United Kingdom. Let us start civil services in USSR, Union of Soviet Socialist Republic. In the USSR, it was the party at appropriate levels which exercised control over the civil service. The situation concerning the civil service in the USSR was complicated by the existence of parallel bureaucracy in Communist Party and the oversight of state functions. In Soviet Union, dominant political party is Communist Party, which exercised control over civil service or civil servants. Due to existence of bureaucracy in Communist Party, there was a complicated situation in USSR to run the state affairs or state functions. The power of nomenclatura was exercised by the party by its supervision of the appointments. The posts which were all sensitive or important were broadly termed as civil services in the USSR, but we may also take into account the other services which were once effectively controlled by the state, such as the mass media, education, industrial production, and even the military. Let we know about how appointments were made in USSR. USSR had provincial or staff civil services because of their structure as federal states. Departmental recruiting agencies for the purpose of recruiting civil servants. यूएसएसआर में जो रिक्रूटमेंट का अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर था वो ड्यू टू फेडरल स्टेट होने की वजह से इसमें डिफरेंट जो इसकी एजेंसीज थी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सब यूनिट्स थे, इसी की बुनियाद पर इसमें जो रिक्रूटमेंट, इंडक्शन, ये अपॉइंटमेंट्स वो की जाती थी. फेडरल स्टेट्स में यही है कि पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स. इफ वी टॉक अबाउट इन पाकिस्तान इज अ फेडरल स्टेट. द इंडक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन पाकिस्तान इज डन बाय फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन as a center, and 4 public service commissions just like Punjab Public Service Commission, Sindh Public Service Commission, KP Public Service Commission and Balochistan Public Service Commission. ये पाकिस्तान में भी इसी तरह, जिस तरह ये बात कर रहे हैं यूएसएसआर में फेडरल स्टेट सिस्टम था, इसी तरह पाकिस्तान में यही सिस्टम है कि फेडरल का एक अलग से पब्लिक सर्विस कमीशन है जिसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, और इसी तरह जो 4 प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी, इनके फर्दर अलग से पब्लिक सर्विस कमीशन है जो कि इंडक्शन या रिक्रूटमेंट करते हैं. तो यही बात वो यूएसएसआर की कर रहे हैं कि यूएसएसआर में भी यही प्रोसीजर था इंडक्शन का, रिक्रूटमेंट का. What is
Nomenclatura. It is a French term. Nomenclatura in the former Soviet Union was a group of people who held various key positions in the bureaucracy, ruling all spheres of the country's activity, including government, industry, agriculture, education, etc., whose positions were granted only with the approval of Communist Party. नोमेनक्लेचरा क्या है कि एक फ्रेंच टर्म है जो यूज़ की गई है। इसमें फॉर्मर जो इसके सोवियत यूनियन है, इसमें लोगों का एक ग्रुप है जो मेन इसकी इदारे हैं, जिस तरह इंडस्ट्री, एग्री, एजुकेशन और इसके अलावा जितने इदारे हैं, इनकी जो टॉप ब्यूरोक्रेसी होती है, टॉप पोजीशंस पर जो ब्यूरोक्रेसी है, इस ग्रुप को, टॉप पोजीशन ब्यूरोक्रेट्स को नोमेनक्लेचरा, ये रशियन टर्म में इसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज civil service in the USSR was classified in 3 broad senses. Number 1, it was a form of administrative management. Number 2, it was a social group functionary. Number 3, it was a group of political elite. Number 1, it was a form of administrative management. If we talk about number 1, administrative management, it was the actual work of civil servants. Number 2, it was a social group functioning. It means civil servants work in groups socially. यहाँ पर मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा कि जिस तरह जितने भी ये सिविल सर्वेंट्स हैं या इदारे हैं, वो एक कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं। आप अगर देखें यहाँ पर रेस्क्यू का सिस्टम, रेस्क्यू जो डिपार्टमेंट है, हमारी सर्विसेज हैं, रेस्क्यू 1112, इसकी जो कोऑर्डिनेशन है ग्रुप में किस तरह काम करता है बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ। अगर सिर्फ पुलिस के साथ देखें, अगर कोई रेस्क्यू पर इमरजेंसी कॉल मौसूल होती है कि यहाँ पर कोई मर्डर वगैरह हुआ है किसी का, तो रेस्क्यू सर्विस का काम है कि वो फौरी अपना इसका जो रेलिवेंट इदारा है जो इस मर्डर केस को डील करेगा, होमिसाइड या पुलिस या PFSA, जितने भी रेलिवेंट इसके ऑफिशियल्स हैं, उन सबको रेस्क्यू का जो इदारा है वो कन्वे करेगा। इसी को सोशल ग्रुप फंक्शनरी बोलेंगे। नंबर 3, it was a group of political elite. Sensitive and important services just like education, industrial production and mass media exercised by a group of political elite. Political elite वही टॉप ग्रुप है इसमें सिविल सर्विसेज में, जो इन डिपार्टमेंट्स या यहाँ पर जो मेजर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको लीड कर रहे होते हैं या वहाँ पर पावर्स जो हैं वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, सोवियत सिविल सर्विस आफ्टर द बोल्शेविक रेवोल्यूशन। व्हाट वाज बोल्शेविक रेवोल्यूशन? The Russian Revolution was a period of political and social revolution commencing with the abolition of monarchy in 1917. After Bolshevik Revolution, it was
primarily decided to adopt the political economic model of Marx and Lenin. It was developed mainly to neutralize the ill effects of market forces of capitalism. Market regulation was replaced by attempts at the direct administration of economic life. After Bolshevik Revolution, it was primarily decided to adopt the political economic model of Marx and Lenin. कार्ल मार्क्स और लेनिन को मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स आप सब लोग ये जानते हैं और इन्होंने क्या काम किया. इसमें यही वो बात कर रहे हैं कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद यूएसएसआर ने डिसाइड किया कि वो मार्क्स एंड लेनिन के जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक मॉडल है उसको वो फॉलो करेंगे, उसको डेवलप करेंगे. किस लिए? टू न्यूट्रलाइज द इल इफेक्ट्स ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ कैपिटलिज्म. Next, the Bolshevik Revolution under Lenin came to power with the promise of replacing the existing centralized state. Existing centralized state structure based on civil bureaucracy and military with newly based armed workers. बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद क्या किया गया कि जो मौजूदा सेंट्रलाइज स्टेट पावर स्ट्रक्चर था जो कि बेस करता था सिविल या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी पर, उसको रिप्लेस किया गया. किससे? आर्म्ड वर्कर्स. सिर्फ यहाँ पर जो वर्डिंग है उसको एक्सचेंज किया गया है, चेंज किया गया है वर्डिंग को. सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को यहाँ पर नाम क्या दिया गया है? न्यू जो इसको नाम दिया गया है बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद आर्म्ड वर्कर्स. इन दोनों को मिलाकर उसने आर्म्ड वर्कर्स का नाम दिया है. नेक्स्ट, द सेंट्रल सिविल सर्विस इन सोवियत यूनियन अनलाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान एंड फ्रांस was primarily related to the management of the level and the varied modes of production in the light of the social priorities at a given point of time. सोवियत यूनियन में सेंट्रल सिविल सर्विस बुनियादी तौर पर मैनेजमेंट से रेलिवेंट थी, मैनेजमेंट से रिलेटेड थी, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में इसके ये अपोजिट थी. यानी कि सोवियत यूनियन में जो सेंट्रल सिविल सर्विस जो थी वो मैनेजमेंट से रेलिवेंट थी, जबकि यूएस, यूके, फ्रांस में इसके अपोजिट थी. यानी कि मैनेजमेंट से रेलिवेंट नहीं थी, ये सोशल प्रायोरिटीज पे बेस कर रही थी. अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट कॉन्सेप्ट, civil service was an organ of political cohesion in a class society. Political cohesion सियासी मुदाखलत या सियासी रुकावट, इसको ये पॉलिटिकल कोहेजन यहाँ पे बोल रहे हैं कि मार्क्स, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स एंड लेनिन कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल कोहेजन है, सियासी मुदाखलत या रुकावट है माशरे में, सिविल सर्विसेज जो है वो इसका रुकन है. इवन इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक फ्रांस, पाकिस्तान, द यूएसए एंड द यूके, सिविल सर्विस हैज बीन यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक लेवल प्लेइंग. Civil service makes inroads in the business activities of the government, like formation of numerous
पब्लिक कॉरपोरेशंस एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज। सिविल सर्विसेज गवर्नमेंट के जो बिजनेस एक्टिविटीज़ को है उनको रन करने के लिए जो रूट है, रोड जो है वो हमवार करती है, जैसा कि पब्लिक कॉरपोरेशंस और पब्लिक एंटरप्राइजेज की फॉर्मेशन। यानी कि सिविल सर्विसेज, पब्लिक एंटरप्राइजेज, पब्लिक कॉरपोरेशंस की फॉर्मेशन में गवर्नमेंट को जो है वो उसको इसका हेल्प आउट करती है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट कॉन्सेप्ट, द सोवियत मॉडल ऑफ सिविल सर्विस इकोनॉमी with regulations and indirect control by the civil services rather than direct ownership and administration are the rule in the UK, USA and France. यूके, यूएसए और फ्रांस में जो रेगुलेशन है और इनडायरेक्ट जो कंट्रोल है सिविल सर्विसेज का वो उससे डिफरेंट है। रशिया में, यूएसएसआर में और यूके, यूएसए, फ्रांस में, इन दोनों में जो रेगुलेशन और इनडायरेक्ट कंट्रोल है सिविल सर्विसेज का वो एक दूसरे के अपोजिट है, डिफरेंट है। द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इन द फॉर्मर Soviet Union was highly centralized, and it was also an extremely political civil system. Like in the USA, the civil service in Soviet Union was largely drawn from the specialist group, but the specialists were compelled to join the Communist Party to become the privileged members of the nomenclatura. The method of recruitment in the former Soviet Union was highly centralized. यूएसएसआर या सोवियत यूनियन में जो रिक्रूटमेंट इंडक्शन का जो प्रोसीजर था वो हाईली सेंट्रलाइज्ड था। जिस तरह यूएसए में है, जिस तरह यूएसए या पाकिस्तान में है, फेडरल सिस्टम है कि पावर जो है सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान तकसीम की जाती है, इसी तरह यूएसएसआर में भी यही सिस्टम था। In the USA, the civil service in Soviet Union was largely drawn from the specialist groups, but specialists were compelled to join the Communist Party to become the privileged members of the nomenclatura. पाकिस्तान, यूएस, यूके, फ्रांस, अगर इनकी बात करें, यहाँ पर जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई इनका लेन देन या इनकी कोई मुंसलिक ये नहीं होते, ना ही हो सकती हैं, ना ही इनके जो एक्ट्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इनको कोई इजाज़त है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलकर काम करें। लेकिन यूएसएसआर में क्या था, बिफोर रेवोल्यूशन यूएसएसआर में, बोल्शिक रेवोल्यूशन, बिफोर बोल्शिक रेवोल्यूशन यूएसएसआर में क्या था कि जो स्पेशलिस्ट ग्रुप था, जिस तरह अगर पाकिस्तान में बात करें सिविल सर्विसेज ग्रुप में तो ओएमजी ग्रुप जो है, इसी को अगर हम लें स्पेशल ग्रुप, तो इस तरह के ग्रुप्स की जो स्पेशल ग्रुप्स का था ये कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, जो रूलिंग पार्टी वहाँ की थी यूएसएसआर की, इनसे मुंसलिक हो जाते थे और वो एक नोमेनक्लेचर का जो है हिस्सा बन जाते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रिविलेजेस वहाँ से अवेल कर सकें। सच पॉलिटिकल कंपल्शन इज़ एब्सेंट इन द यूएसए, पाकिस्तान, यूके एंड फ्रांस। वही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान, यूके, यूएसए, फ्रांस में
इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। ये बिफोर बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन 1917 में, इससे पहले यूएसएसआर में इसी तरह चल रहा था, जिसकी वजह से जो सिविल सर्विस है यूएसएसआर की वो किसी भी तरह डिलीवर नहीं कर पा रही थी। However, an indirect loyalty or commitment towards ruling party policy programs are some of the major political criteria for the selection of civil servants to the top post. Interestingly, the USA top civil service post is almost similar to the practice of Soviet Union in the area of appointment and their dismissal. रूलिंग पार्टी की तरफ अगर किसी सिविल सर्वेंट की लॉयल्टी जो है वो उस पर वो कंप्रोमाइज़ करते हैं, कोई भी सिविल सर्वेंट रूलिंग पार्टी की जो उसकी अपनी खिदमात या जो उसकी लॉयल्टी है उसमें रूलिंग पार्टी की तरफ चली जाती है, तो यही मेन वजह है कि सिविल सर्वेंट्स वो सर्व नहीं कर पाते। इसकी एक मेजर इसमें मार्क्स और लेनिन ने यही बात की कि जब तक सिविल सर्विसेज को पॉलिटिक्स से अलहदा ना कर दिया जाए तब तक ये डिलीवर नहीं कर सकते, कि इनकी लॉयल्टी सिर्फ सिविल सर्वेंट्स की लॉयल्टी सिर्फ स्टेट के साथ होनी चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ इनके अपने बेनिफिट्स और इनके अपने मफादात होते हैं जिसकी वजह से सिविल सर्वेंट्स को साथ में लाते हैं। लेकिन सिविल सर्वेंट्स ने तो साथ चलना है पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, सिर्फ उनका जो भी टाइम पीरियड है पाकिस्तान में 5 ईयर वो भी कम बेशी कंप्लीट होता है, यूएस में 4 ईयर, यूके में 5 ईयर, तो वो पीरियड फिर चलते हैं। उसके बाद ये मुनासिब जो डिलीवर जो है वो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मार्क्स और लेनिन ने यही एक सजेस्ट किया या रिफॉर्म्स की बात की कि ये पॉलिटिकल जो इनकी लॉयल्टी है इसको ख़त्म किया जाए। नेक्स्ट, द मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट conception of civil service system was almost retained up to 1988. If at all there was any change in the style and functioning of the civil service, it was largely due to the personality factor of the Communist Party leader. कार्ल मार्क्स और लेनिन का जो कॉन्सेप्ट था सिविल सर्विस से रेलिवेंट 1988 तक वो रिटेन रहा। बट ड्रास्टिक रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विस सिस्टम in civil service system was made during the period of Mikhail Gorbachev 1985 to 1991 when he became the General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union. Thus, in the former USSR, the party's over-involvement in administration was identified as a major problem. Mikhail Gorbachev, who was the General Secretary of the Central Committee of Communist Party, इसने रिफॉर्म्स की बात की सिविल सर्विसेज में, जिस तरह कार्ल मार्क्स और लेनिन ने बात की थी रिफॉर्म्स के लिए, या जिन चीज़ों की इन्हें मार्क्स और लेनिन को जिन पॉइंट्स पर एतराज़ात थे उन्होंने वो पॉइंट आउट किया। इसी तरह सेक्रेटरी जनरल ऑफ CPSU ने
इसने भी रिफॉर्म्स की बात की कि जब तक ये रिफॉर्म्स यूएसएसआर के सिविल सर्विसेज में नहीं होती तब तक ये डिलीवर नहीं कर पाते या मैक्सिमम डिलीवर नहीं कर पाएंगे. दैट वाज द सिविल सर्विस ऑफ USSR. If anybody have some queries or want to ask some questions about civil services in USSR, he or she can contact me on WhatsApp or on my mobile number. I have shared some a PDF file, Civil Servants Act of 1973 in the morning. I have shared with you Civil Servants Act 1973 in the morning. In that file you should read about, please note down which topics or which classes you should read about. क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स थे उन्होंने अभी ये सिविल सर्वेंट्स एक्ट रीड ही नहीं किया था, लेकिन उन लोगों ने बड़ा मतलब वो शोर एक मचाया कि सर ये बहुत मुश्किल है, लीगल लैंग्वेज है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ही होती है. तो मुश्किल नहीं है, पढ़ के देखेंगे आपको समझ आ जाएगी. फिर भी अगर इसमें कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे किसी भी वक्त व्हाट्सएप या मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. अच्छा, जो पॉइंट्स या जो क्लासेस स्टूडेंट्स आपने रीड करने हैं वो लिख लेंगे. इसमें फर्स्ट में है सबसे पहले सिविल सर्विसेज. अकॉर्डिंग टू सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973, what is civil services? You have to read about this. Who is a civil servant? What is actualization? CSB, Central Selection Board. DSB, Departmental Selection Board. DPC, Departmental Promotion Committee. Desire, composition of CSB, DSP, DPC. इनके Central Selection Board, Departmental Selection Board, Departmental Promotion Committee. Composition of CSB, DSB, DPC. Next, consideration by CSB, DSB and DPC. नेक्स्ट इसमें आप देखेंगे प्रमोशन. नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑन एक्टिंग चेंज बेसिस. Deferment, supersession, and the last one is efficiency index for promotion, deferment and supersession. बस आप लोगों ने सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 के ये जो क्लॉजेज हैं, उस जो PDF फाइल मैंने शेयर की थी उसमें यही क्लॉजेज जो हैं वो रीड आउट करने हैं. अगर इनमें से किसी को कोई समझ नहीं आती तो मुझे व्हाट्सएप या मेरे नंबर पर वो रब्ता कर सकता है. थैंक यू एवरीवन. अल्लाह हाफिज़.